Hello students, in the last class we have discussed about the raw materials of photosynthesis, essential elements of the photosynthesis, as well as we have discussed about the mechanism of photosynthesis, light reaction and dark reactions. Now I am going to deal with the factors affecting photosynthesis. There are several factors which affect photosynthesis. So today I will be discussing with the factors affecting photosynthesis. So there are two types of the factor which affects photosynthesis, internal factors and external factors. ठीक है? तो there are two types of the factors, internal factors and external factors. Internal factors and external factors. Internal factors are also known as plant factors because these are the factors which are present inside the plant. ठीक है, जो प्लांट के अंदर रह करके प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर दोस फैक्टर्स, how many types of the internal factors are there and how many types of the external factors are there. So internal factors, the first internal factor is the number, age, size and orientation of leaf, right? The first internal factor is number, age, size and orientation of leaves, right? जितना ज़्यादा ग्रीन लीव्स होंगे, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा. यंग लीव्स रहेंगे, ठीक है ना, तो मतलब डीजेनरेटिंग या ओल्ड एंड सेनेसेंट लीव्स नहीं रहेंगे. यंग लीव्स रहेंगे तो ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटी रहेगी टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. साइज, जितना ज़्यादा एरिया कवर करें, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा सनलाइट वो ट्रैप करेगा, लीव्स ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. एज वेल एज द ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ का ओरिएंटेशन इस तरीके से हो कि सनलाइट उनको प्रॉपर सनलाइट मिले. कभी कभी क्या होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है तो क्लोरोफिल के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. तो देयर इज अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, मतलब ऑब्लिक ओरिएंटेशन, ऑब्लिकली सनलाइट फॉल होती है. सो जिससे कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म होता है. ठीक है, सो नंबर, एज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, इट अफेक्ट्स द photosynthesis, right? Next factor is mesophyll cells. Mesophyll cells, actually they are parenchymatous cells which contains chloroplast. ठीक है, so more the mesophyll cells present, more will be the photosynthesis. Third, internal carbon dioxide concentration. Internal carbon dioxide concentration. Carbon dioxide is the raw material for photosynthesis, so it will affect the photosynthesis. Carbon dioxide concentration इतना ऑप्टिमम रहना चाहिए कि जो सेल्स जो हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिले और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए. सो इंटरनल फैक्टर्स दे डिपेंड बेसिकली, इसके अलावा दे डिपेंड बेसिकली द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, राइट? Internal carbon dioxide concentration and internal chlorophyll. Chlorophyll ही है which is the essential element along with the sunlight which present in the photosynthesis, which performs photosynthesis. तो internal chlorophyll नहीं रहेगा तो sunlight कौन trap कर करके कौन electron emit करेगा to start the process. तो it is very essential to be the presence of the presence of the chlorophyll, right? So internal factors, it depends on the genetic predisposition and growth of the plant. So internal factor, they depends on genetic predisposition and growth
ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स दे डिपेंड्स ऑन जेनेटिक predisposition and growth of the plant. Now let's discuss external factor. तो the main external factors हैं, they are sunlight, ठीक है, temperature, carbon dioxide concentration and water, ठीक है। सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। जब कई बार क्या होता है, व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, देन देयर इज अ प्रोसेस more than one factor affect the any biochemical process, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर मान लो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस का रेट कैसे डिटरमिन होगा, विच फैक्टर विल डिटरमिन द रेट। अभी हम देख रहे हैं कि these are the 4 external factors which are affecting the biochemical process, because photosynthesis is a biochemical process, है ना। तो इसका rate of photosynthesis, how it will be determined? The rate of photosynthesis will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, ठीक है। मान लो किसी, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि सपोज किसी प्लांट में प्रॉपर सनलाइट ट्रैप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उस एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, इसके सराउंडिंग में सफिशिएंट है, वाटर भी एब्जॉर्ब होकर के उसको रूट के थ्रू, रूट्स मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स से एब्जॉर्ब करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम के थ्रू, तो वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में है, फिर भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत लो रहता है। सो टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, तो आप देख रहे हो कि एक फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर टेम्परेचर कितना स्ट्रॉन्ग है कि सब कुछ सारे फैक्टर्स अवेलेबल रहते हुए भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत कम है, इट इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। दिस लॉ वाज गिवन बाय द ब्लैकमैन्स, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग factor, Blackman's law of limiting factor. This law states that if a chemical process affected by, if a chemical process is affected by more than one factors, is affected by more than one factor, then its rate will be determined, its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. And this is known as law of limiting factor, which was given by the scientist Blackmans, right? Blackman. मैंने एग्जाम्पल बताया कि सपोज किसी जगह पे कोई प्लांट है, किसी एनवायरनमेंट में, किसी जगह पे, उस जगह पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सफिशिएंट है। मान लो यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, it is absorbing water through root, it is in sufficient amount, sunlight is in sufficient amount, still it is not performing photosynthesis,
फिर भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे इट इज़ वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम है। और अभी हम एक एक करके ये चारों फैक्टर देखेंगे कि हाउ these 4 factors affects the photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है। The optimum temperature range to perform a photosynthesis is 25 to 30 degree Celsius। So जो यहाँ पे temperature it is less than 15 degree Celsius temperature, less than 15 degree Celsius or less than 10 degree Celsius। So plant will not perform photosynthesis। और जैसे ही when it is provided the temperature which is suitable for the photosynthesis, the plant will start showing photosynthesis, plant will start photosynthesizing। So you can see that this a single factor, temperature, it affects it determines the rate of photosynthesis, it affects the process of photosynthesis। Same occurs with all the factors। मान लो ये सारे factors, temperature, sunlight भी है, water भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड। नाउ आई विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन इन डिटेल। सो द फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज लाइट। प्लांट्स दे यूटिलाइज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट देर आर सर्टेन marine algae which utilizes moonlight too to perform the photosynthesis। and there are certain plants, sometimes plants also utilizes artificial light। ठीक है, तो artificial light भी utilize करते हैं plant to perform the photosynthesis। तो mainly तो plants जो होते हैं, mainly plants they utilize सनलाइट, है ना। और कुछ मेराइन एल्गी हैं, देयर आर सर्टेन मेराइन एल्गी, दे यूटिलाइज मूनलाइट टू। मूनलाइट को भी यूटिलाइज करते हैं। सनलाइट तो यूटिलाइज करते ही हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मूनलाइट भी यूटिलाइज करते हैं। Plants also utilize artificial lights। Artificial lights में भी कुछ plants जो है, sometimes plants perform photosynthesis, not always but sometimes in some artificial lights the plants perform the photosynthesis, right। अब जो लाइट का है, लाइट जो है, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, ये तीनों फैक्टर जो हैं these 3 factors they all affect the photosynthesis। so अगर हम लाइट में देखें तो लाइट की क्वालिटी भी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, duration of exposure of light, these all three affects the photosynthesis, right। duration of exposure of light। ठीक है, अब क्या होता है, एट लो लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। मतलब क्या होगा कि जब लाइट इंटेंसिटी कम रहती है तो जितना भी लाइट फॉल हो रहा होता है, सनलाइट प्लांट के क्लोरोफिल को ट्रैप करके दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। लेकिन जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी एट हायर लाइट इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस, the further increase in the process of photosynthesis it will affect। ठीक है, there will be no further increase in the process of photosynthesis because other factors becomes limiting। क्यों? higher light intensity में दूसरे factors जो होंगे they will become limiting factor। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हायर टेम्परेचर में क्या होता है,
हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, जो क्लोरोफिल है इट कैन बी डीनेचर्ड, ठीक है। तो एट लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, जब लाइट इंटेंसिटी कम रहती है, एट लो लाइट इंटेंसिटी photosynthesis, there is a photosynthesis will be performed by the plant efficiently. Plants efficiently, ठीक है। लेकिन at high light intensity, जहां ही at high, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। क्यों? वाई देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस? वाई? क्यों? रीजन इज बिकॉज द अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। Other factors become limiting, ठीक है। हमने लिमिटिंग फैक्टर अभी पढ़ा है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि जो फैक्टर अपने मिनिमल वैल्यू की तरफ रहेगा, नियरेस्ट द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, इट अफेक्ट्स द सनलाइट, राइट। नाउ लाइट सैचुरेशन, इन केस ऑफ द प्लांट लाइट सैचुरेशन अकर्स at the 10% of full sunlight, ठीक है। लाइट सैचुरेशन जो होता है इट अकर्स at 10% of full sunlight। उसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इट विल स्टॉप फॉर सम टाइम। अब ये बहुत ज्यादा हाई लाइट, जब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है। इन वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी व्हाट हैपेंस, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म होगी। इन वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी नो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी देयर इज द डिनेचुरेशन इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अकर्स, ठीक है। तो या तो नो फोटोसिंथेसिस होगी या फिर और रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, या तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा या फिर देयर विल बी द रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। एंड द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द हाई लाइट इंटेंसिटी इट कॉजेज द डीनेचुरेशन ऑफ क्लोरोफिल, denaturation of chlorophyll molecules, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी causes the denaturation of chlorophyll molecule. Next limiting factor, next external factor of photosynthesis is temperature. अब क्या होता है, देर इज एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच द प्लांट्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड दैट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज इट रेंजेस बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पे आप किसी बुक्स में देखोगे, किन्हीं बुक्स में जो रेंज दिया हुआ है वो रेंज जो है इट वेरीज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो द ऑप्टिमम रेंज for optimum range of temperature for photosynthesis is 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस इफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में दो तरीके के प्लांट्स के बारे में देखा था कि दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, कम टेम्परेचर पे जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। C3 प्लांट में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, लोअर
टेम्परेचर ऑप्टिमम। और जो C4 प्लांट्स हैं दे respond to high temperature optimum and show higher photosynthesis and high temperature, ठीक है। So C4 plants क्या होते हैं, they respond to high temperature optimum and ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एज वेल एज दे विल शो हायर फोटोसिंथेसिस इन हाई टेम्परेचर। सो दे विल शो higher photosynthesis. They will show higher photosynthesis, right? अब और भी दो, अब आपने देखा होगा कि there are tropical plants and temperate plants present. So in case of tropical plants, the temperature optimum is high, but in case of temperate plant, the temperature optimum is low. So we can write, let's write this information. In case of tropical plants जो होते हैं इनमें जो है टेम्परेचर ऑप्टिमम इज हाई, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ टेम्परेट प्लांट, टेम्परेट प्लांट्स lower temperature optimum is present. The third factor is carbon dioxide. Carbon dioxide is the major limiting factor or the first limiting factor. It affects maximum the rate of photosynthesis, right? So carbon dioxide, it is the major limiting factor or also known as the also called as the first limiting factor of the photosynthesis, right? हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, इट्स वेरी लो, 0.03 to 0.04% of carbon dioxide is present in the atmosphere, ठीक है। तो इतनी कंसंट्रेशन पे है जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सारे ग्रीन प्लांट्स दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे अप टू 0.05% तक कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इट विल शो द इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। If we increase the carbon dioxide concentration up to 0.05%, तो क्या होगा, this will show increase in photosynthesis. लेकिन beyond this limit, beyond this level, the carbon dioxide concentration becomes damaging over the larger periods, right? So beyond 0.05% concentration क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड concentration becomes damaging over longer period, ठीक है, longer periods, राइट। अब हमने जैसे मैंने बताया कि दो तरीके के प्लांट्स हैं, C3 एंड C4 प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब C3 और C4 प्लांट दोनों क्या होंगे, एट लो लाइट कंडीशन में दे नाइदर रिस्पॉन्ड टू द हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। एट C3 एंड C4 प्लांट, बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एट अगर लो लाइट कंडीशन है, लो लाइट कंडीशन में दे विल शो नो रिस्पॉन्स टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन एट मतलब दो कंडीशन है, लो लाइट कंडीशन एंड दूसरा क्या होगा, हाई लाइट कंडीशन।
हायर लाइट कंडीशन अगर है तो क्या होगा, दोनों जो है दे विल शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे विल शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बोथ C3 and C4 प्लांट शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, C3 C4 प्लांट अगर लो लाइट कंडीशन है क्या होगा, तो दे विल शो नो रिस्पॉन्स टू का हायर कार्बन डाइऑक्साइड। लो लाइट कंडीशन है, ठीक है, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वहां पे ज्यादा है। किसी एटमॉस्फेयर में मान लो कोई प्लांट है जहां पे सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम है, लो इंटेंसिटी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उस एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो भी क्या होगा, दिस C3 and C4 प्लांट दे विल शो नो रिस्पॉन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे नहीं। लेकिन हाई लाइट कंडीशन में अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो दे विल शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाई लाइट कंडीशन में साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस जो हैं, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, C3 and C4 प्लांट इट विल शो इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज वाटर। वाटर इज द मेन रिएक्टेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, वाटर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे ही वाटर इज द मेन रिएक्टेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन, बट इट इफेक्ट्स मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स रादर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये मतलब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने से ज्यादा इट विल अफेक्ट थ्रू द प्लांट्स। कैसे, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी, ठीक है ना, वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं, प्लांट के जो लीव्स के सेल्स हैं जो दे विल कैन नॉट इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड, दे कैन नॉट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, जो लीव्स होते हैं वो विल्ट हो जाएंगे, लीव्स जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं। अगर लीव्स विल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। सो दिस इज हाउ द वाटर कंडीशन, वाटर affects the photosynthesis. So it doesn't affect directly on the photosynthesis. It doesn't affect directly photosynthesis, but it affects the plant. ठीक है, तो water affects more through its effect on plant. Effect on plants rather on photosynthesis। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है, मैंने बताया कि अगर सपोज वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटा जो होंगे क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोजेस। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कम आता है तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज ना। दूसरा क्या होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन से क्या होगा, अनदर इफेक्ट क्या होता है, लीव्स क्या होंगे, लीव्स विल्ट हो जाएंगे। लीव्स विल्ट होंगे तो क्या होगा, लीव्स विल्ट होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होगा, रिडक्शन इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में रिडक्शन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन
metabolic activity, and in this way it will affect the process of photosynthesis. Metabolic activity affect होगी तो there will be the reduction in the photosynthesis. Another factor which affects photosynthesis is the oxygen concentration. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में क्या होता है, ज्यादा अगर हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा तो देयर विल बी लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लोअर विल बी द रेट ऑफ photosynthesis. Higher the concentration of oxygen, lower will be the rate of photosynthesis. Next is chlorophyll. क्लोरोफिल हमने देखा कि क्लोरोफिल कैसे क्या करता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोरोफिल कंटेंट. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोरोफिल कंटेंट. यानी कि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा, राइट? So this is how the chlorophyll affects the photosynthesis. So this is about all the factors which affects the photosynthesis. Next is the significance of photosynthesis. Significance of photosynthesis. The photosynthesis is a boon to nature. It is a boon to human beings. How? Because the byproduct of photosynthesis is oxygen, and we only survive by the presence of the oxygen. We inhale oxygen and then only we can survive. The second is that the carbon dioxide, which is a toxic gas for us, it is absorbed by the plants by the process of photosynthesis. So in this way, in this process, the plants, by performing photosynthesis, it is purifying, it purifies the atmosphere, है ना? तो प्लांट क्या करता है, एक तो ये, और उसके अलावा क्या होता है, एक तो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा इट इज अब्जॉर्बिंग, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हम जो वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, जो दूसरे भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, या किसी और प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, दे ऑल आर प्यूरिफाइड बाय द plants with the process of photosynthesis. उसके अलावा the food is only manufactured by the plants. We all the human beings, we all the animals, we are dependent on the plants for the food, right? So the photosynthesis is a boon. It is a boon to nature. It is a boon to human beings, nature and humans. ठीक है? And what are the significance? First is the production of food material. First significance is production of food material, जो कि जिस पे भी हम सारे एनिमल डिपेंडेंट हैं. एंड सेकेंड सिग्निफिकेंस, it controls the atmosphere, it balances the atmosphere. ठीक है? So atmospheric control, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, अंदर लेगा, इनटेक करेगा, एंड ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करेगा. एंड थर्ड इज इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर, प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? सो this is all about photosynthesis. Let's see some activities related with the photosynthesis, with the nutrition in plants. Now let's discuss about the activities related to photosynthesis. Activities related to photosynthesis.
ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी विच वी विल डिस्कस इज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट chlorophyll is essential for the photosynthesis. The first activity or the first experiment or the first activity, it is the experiments to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Chlorophyll is necessary for photosynthesis. इसके लिए हम क्या करते हैं, we will perform an experiment in which we will take a potted plant, ठीक है, एक potted plant लिया which has the variegated leaves, ठीक है, जैसे कि वो potted plants है, it may be of the crotons, ठीक है। इन पॉटेड प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हैं, मीन्स दे हैव द पैचेज ऑफ ग्रीन कलर्ड एंड white colored patches. The green colored patches means they are in those areas the chlorophylls are present, and the non-green patches are there which in those non-green patches the chlorophylls are absent. तो क्या किया कि इस पॉटेड प्लांट को पॉटेड प्लांट पहले क्या किया, we took a potted plant with variegated leaves, और वो it may be of the leaves, maybe the leaves of the crotons, जिसमें कि पैचेज होते हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज होते हैं, ठीक है। अब क्या किया, प्लांट को पहले 3 दिन के लिए डार्क में रख दिया। क्यों रखा डार्क में? टू डी स्टार्च, मतलब जो लीव्स में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है उनको वो सारी यूटिलाइज्ड हैं। स्टार्च का फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग द लाइट, और अगर अंधेरे में रख देंगे तो लाइट का स्टार्च का सिंथेसिस तो नहीं होगा, लेकिन प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट तो होती है टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। तो लाइट से हटा के डार्क में रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट मर जाएगा तुरंत, पहले वो जो स्टोर्ड फूड है उसको यूटिलाइज करेगा ना। इसीलिए डी स्टार्च करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लांट को कहाँ रखेंगे? डार्क में रखेंगे। तो डार्क में क्यों रखा जाता है? टू कीप द प्लांट्स इन डार्क फॉर द टू डी स्टार्च, ठीक है, टू डी स्टार्च द प्लांट। 3 दिन तक रख दिया डार्क में। उसके बाद क्या किया, उसको फिर 2 घंटे फॉर 6 आवर्स द प्लांट वॉज केप्ट इन सनलाइट। 6 घंटे के लिए प्लांट को फिर सनलाइट में रखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, दे प्लक 1 लीफ, एक लीफ को तोड़ा यहाँ से, ठीक है, और उसको क्या किया उन्होंने, अब उसको बॉयल करना है, ठीक है। अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो पहले वाटर को, लीफ को जो है बॉयल किया, बॉइल्ड इन वाटर, ठीक है। लीफ को क्या किया, वाटर में बॉयल किया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लीफ को डीकलराइज करने के लिए जो ग्रीन पैचेस प्रेजेंट है यहाँ पे लीफ में, उनको डीकलराइज करने के लिए किस में बॉयल करेंगे? अल्कोहल में। तो एक बीकर में अल्कोहल में टू डीकलराइज लीफ, किस में बॉयल करते हैं? अल्कोहल में। अल्कोहल में डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले एक बीकर में, किसी एक बीकर लेंगे, उसमें सपोज अल्कोहल है तो उसमें लीफ को डाल दिया, इस तरीके से लीफ को डाल दिया। अब इस बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, अब इसको डायरेक्ट हम हीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बॉयल नहीं करेंगे अल्कोहल को। इसको फिर हमने क्या किया, एक वाटर बाथ बनाया, एक बड़ा वेसल लिया जिसमें कि पानी था और उसको बॉयल करना शुरू किया। एक स्प्रिट लैम्प लिया, विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिट लैम्प वी प्रोवाइडेड फ्लेम, ठीक है, इस तरह से। और ये दिस इज द वाटर बाथ। तो डायरेक्ट हम नहीं बॉयल करते हैं, वाटर बाथ में
एक बीकर जिसमें कि अल्कोहल होगा उसमें लीफ को डालेंगे प्लग करके और उसको फिर वाटर बाथ में रख देंगे। इस तरह से वाटर बाथ तैयार किया जाता है। एक बड़े पॉट में वाटर रख करके उसको बॉयल करेंगे और उस पॉट में फिर हम ये बीकर रख देंगे। अब क्या होगा, इसको बॉयल करके डीकलराइज कर दिया, तो डीकलराइज करने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल में क्यों डालते हैं लीफ को, टू डीकलराइज। डीकलराइज करने के बाद क्या किया, लीफ को निकाला और उसको गर्म पानी से वॉश किया तो लीफ सॉफ्ट हो गई। अब क्या होगा, उसके अलावा जो अल्कोहल जो था उस पे लीफ के सरफेस पे अल्कोहल लगा था वो भी रिंस्ड ऑफ हो गया, उसको रिंज कर दिया। उसके बाद लीफ को क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी विल पोर डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद इसको एक बार फिर वॉश कर दिया। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या हुआ कि जब हमने लीफ को ऑब्जर्व किया तो सपोज ये लीफ है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ी साइज का लीफ बना रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो। तो सपोज दिस इज वेरीगेटेड लीफ, ये जो है इनिशियली दीज आर green patches present on the leaf and these are non green patches जो मैं सर्कल में दिखा रही हूँ, non green patches। तो जब हमने वॉश आयोडीन सोल्यूशन पोर किया उसके बाद लीफ को ऑब्जर्व किया तो जो ये नॉन ग्रीन पार्ट था ये तो वाइट ही रहा। ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट जो था ये वाइट ही रहा, लेकिन जो ये ग्रीन पार्ट थे, दिस ग्रीन पार्ट, all the green parts, green patches, they turns into blue black color। ठीक है, and blue black color क्यों टर्न किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अल्कोहल प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था, राइट। कैसे स्टार्च कैसे फॉर्म किया, पहले तो डार्क में रख के डी स्टार्च किया प्लांट को। ठीक है, तो जितना भी जो नॉन ग्रीन पैचेस थे और ग्रीन पैचेस सब में अब स्टार्च खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको फिर 6 आवर्स के लिए इस पॉटेड प्लांट को कहाँ रखा, सनलाइट में रखा। उसके बाद लीफ को तोड़ा, प्लग किया और उसको पहले गर्म पानी में बॉयल किया। फिर गर्म पानी के बाद उसको अल्कोहल में बॉयल किया, वाटर बाथ बना के। मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि वाटर बाथ कैसे बनाते हैं। वाटर बाथ में बॉयल करने के बाद फिर उसको रिंच किया, लीफ को रिंच किया और उसके बाद उसमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाला। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हमने उस लीफ को फिर वॉश करके जब लीफ को ऑब्जर्व किया तो जो व्हाइट पैचेस थे, नॉन ग्रीन पैचेस थे, वो तो व्हाइट थे, पर जो ग्रीन पैचेस थे, इनिशियली जो ग्रीन पैचेस थे, दे टर्न ब्लू ब्लैक कलर एंड दिस टर्निंग इन ब्लू ब्लैक कलर इट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब कि इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही स्टार्च फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिविटी 1 विच शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो हमें कंक्लूजन क्या, व्हाट वी कंक्लूडेड, कंक्लूजन क्या आया, वी कंक्लूडेड दैट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च। फोटोसिंथेसिस इज necessary to make starch, right? Next activity हम देखते हैं, activity 2. This activity is to show that carbon dioxide is necessary to make starch, to synthesize starch during photosynthesis. Carbon dioxide is necessary to make starch during photosynthesis. This is activity 2. हर एक स्टेप को समझना जरूरी है, क्यों अल्कोहल डाला, क्यों बॉयल किया वाटर में, क्यों गर्म पानी में फिर बॉयल उसको रिंच किया जस्ट टू सॉफ्टन द लीफ, राइट। नाउ सेकेंड एक्टिविटी में उस सब हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए इन अ बेल जार। वी केप्ट 2 पॉटेड प्लांट, एक बेल जार में रखा।
पहले जो दोनों पॉटेड प्लांट, दोनों में क्या किया था, पहले इसको डी स्टार्च किया। डी स्टार्च करने के लिए क्या करते हैं पॉटेड प्लांट को, मैंने बताया कि उसको 3 दिनों तक डार्क में रखा, उसके बाद फिर उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में ले आए और एक बेल जार में रखा, दोनों पॉटेड प्लांट को इस तरीके से, ठीक है। डी स्टार्च करने के लिए मैंने बता दिया है कि डार्क में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सनलाइट में लाए, फॉर वी केप्ट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। अब एक पॉटेड प्लांट, ये ग्लास प्लेट के ऊपर पॉटेड प्लांट को रखा हुआ है, दिस इज द ग्लास प्लेट। और एयर टाइट करने के लिए क्या किया था, एयर टाइट करने के लिए यहाँ पे जो है वैसलीन से एयर टाइट कर दिया, ठीक है। वैसलीन लगा के इसको एयर टाइट कर दिया। अब एक जो प्लांट का जो सेटअप था उसमें एक पेट्री डिश में, एक प्लेट में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड कोटेड कॉटन रखा, और कॉटन सोक्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे में हमने ऐसा कोई प्लेट नहीं रखा, ऐसा कोई कॉटन नहीं रखा जिसमें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड था, ठीक है। अब क्या किया, इसको लाइट में रखने के बाद 2 घंटे लाइट में रखा, उसके बाद हमने दोनों की लीव्स निकाली, दोनों की लीव्स ली और दोनों का स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट ऐसे सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, स्टार्च टेस्ट किया। तो इसमें जिस सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन रखा था उसमें क्या हुआ, स्टार्च सिंथेसिस शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था, इट वॉज अब्सॉर्ब बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे लाइट में जब रखा, सनलाइट में रखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, नो फोटोसिंथेसिस। पर इस सेटअप में क्या हुआ, इस सेटअप में कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन नहीं रखा था, तो यहाँ पे क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड था इट वॉज सो अब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड इट शोज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म हुई, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई तो क्या हुआ, स्टार्च बना। तो इस पॉटेड प्लांट के लीफ को जब स्टार्च के लिए टेस्ट किया तो इट शोज द पॉजिटिव रिजल्ट, it showed the presence of starch by turning the leaf in blue black color. But in this case क्या हुआ, it didn't turn in blue black color because there is no synthesis of starch, ठीक है। डी स्टार्च करने के बाद हमने रखा था ना, तो यहाँ स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो भी यहाँ प्रेजेंट था, इट वाज एब्सॉर्ब बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी टू मेक स्टार्च ड्यूरिंग द photosynthesis. And the last activity is activity 3, third activity. Experiment to show that sunlight is necessary for photosynthesis. The third activity is the experiment to show that sunlight is necessary for photosynthesis, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, अगेन वी टुक अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लिया और उसको पहले, ठीक है, उसको डी स्टार्च किया बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क फॉर 3 days, ठीक है। और वो जो पॉटेड प्लांट लिया हमने, दैट पॉटेड प्लांट हैज लॉन्गर लीव्स, ठीक है। अब डी स्टार्च करने के बाद हमने क्या किया, एक लीफ को कुछ जगह पे एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट वाज कवर्ड विद द एल्युमिनियम फॉयल से टाइटली कवर कर दिया, ठीक है। खूब टाइटली वी कवर्ड द लीफ विद एल्यूमिनियम फॉयल, और इतना
ये इंश्योर किया कि कहीं से भी सनलाइट जो है सनरेज एंटर ना करे, ठीक है, कहीं से भी सनरेज एंटर नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या किया, आपने फिर से ध्यान दिया, पहले इसको डिस्चार्ज किया, 3 दिन तक डार्क में रखे, उसके बाद फिर क्या किया, पहले लीफ सनलाइट में ले जाने से पहले एक लीफ के एक पर्टिकुलर पार्ट को एल्यूमिनियम फॉयल से एकदम टाइटली कवर कर दिया, या ब्लैक पेपर से टाइटली कवर कर देते हैं, इतना टाइटली कवर करेंगे कि कहीं से भी सनरेज अंदर ना जाए। उसके बाद हमने स्पॉटेड प्लांट को जो है सनलाइट में रखा फॉर फ्यू आवर्स, और उसके बाद हमने इस लीफ को प्लग किया। प्लग करने के बाद वी टेस्टेड इट फॉर द स्टार्च टेस्ट, ठीक है। स्टार्च टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, जो ये लीफ था, यहां पे क्या था, ये जो ग्रीन पैचेस थे दे टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। स्टार्च टेस्ट करने के बाद ये जो ग्रीन पैचेस थे दे टर्न इनटू ग्रीन, जो एक्सपोज्ड पार्ट था, दीज आर द एक्सपोज्ड पार्ट एंड these are the covered part, ठीक है, which are covered by the aluminum foil। तो जो ये exposed part थे they turned blue black in color after the pouring iodine solution while we performed the starch test, but this covered part it did not turn into the blue black color, it remained colorless। क्योंकि due to being covered with the aluminum foil, it did not perform photosynthesis। यहाँ पे photosynthesis नहीं हुआ था, तो photosynthesis यहाँ क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ी तो photosynthesis नहीं हुआ और starch synthesis नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये इतना पोर्शन जो था वो कलरलेस था। and this shows that sunlight is essential for the photosynthesis, for the synthesis of the starch। So this is all about the activities related with the photosynthesis. Next I will discuss with the nutrition in animals. Thank you.